بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد احسان، آج ہم کلاس ششم کے یعنی چھٹی کلاس کے عربی کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سورۃ بقرہ کی آیت 184 سے 185 تک جو ہے آج کا ہم سبق پڑھیں گے۔ کل کے سبق میں آپ نے جو پڑھا تھا آیت نمبر 183 میں کہ اللہ نے رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کر دیے تھے۔ روزوں کا مسئلہ چل رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، تاکہ تم اس سے پرہیزگار بنو، متقی بنو، لعلکم تتقون، اللہ سے ڈرو اور گناہوں سے بچے رہو۔ اب آج کی اس آیت میں آیت نمبر 184 میں ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اللہ جل جلالہ یہاں سے روزہ داروں کے لیے جو اللہ نے سہولتیں میسر کی ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے ایام معدودات، کہ یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارا سال اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے ہوں یا تم مشکل میں پڑ جاؤ، اتنے زیادہ روزے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چند گنتی کے دن ہیں روزے کے جو اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اگر انہی دنوں میں کوئی آدمی مریض ہے یا سفر پر ہے تو اس کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی، روزہ افطار کرنے کی اجازت دی ہے کہ وہاں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزہ چھوڑ دے، مریض ہے، بیمار ہے تو اس وجہ سے روزہ چھوڑ دے، یا وہ مسافر ہے، مسافر بھی بہت پریشانی میں ہوتا ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مسافر اور مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کی گنتی پوری کرے، وہ دن گنے کہ کتنے روزے چھوڑے ہیں، بعد میں ان روزوں کو مکمل کرے، وہ روزے رکھے۔ اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود روزہ نہیں رکھتا اور وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا ہے، تب بھی اس کی طرف سے وہ روزہ ادا ہو گیا۔ لیکن یہ آیت ابتدا میں نازل ہوئی، بعد میں اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا، اگلی ہی آیت میں ناسخ آیت جو ہے وہ موجود ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکے، بعد میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے، یا یہ ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے اور روزہ نہیں رکھا، فدیہ دے دیا مسکین کو، تو پہلے تو ٹھیک تھا، ابتدا میں یہ آیت بھی یہی بتا رہی ہے، لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہو اور فدیہ دے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایام معدودات، یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا کسی سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا لازم ہے، یعنی دوسرے دنوں میں روزے رکھے گا۔ وعلی الذین یطیقون، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، اور روزے نہ رکھیں تو فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ روزے رکھنے کی طاقت کے باوجود روزے نہیں رکھتے تو ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں، اس کی طرف سے فدیہ ہو جاتا تھا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، پھر جو کوئی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے فهو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی ایک مسکین سے زائد وہ کھانا کھلانا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم خود روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ خود روزہ رکھنا، فدیہ دینے سے، پیسے دینے سے، مسکین کو کھانا کھلانے سے یہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ ان کنتم
تعلمون, अगर तुम इस बात को जानते हो. तो ये मसला था मुसाफिर और मरीज के बारे में जो इस आयत में बयान हुआ है. अब अगली आयत हम पढ़ते हैं, आयत नंबर 185, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन. गुज़िश्ता आयत में बिला तअय्युन चंद दिनों के रोजे रखने का हुक्म था. बिला तअय्युन अय्याम मादूदात के चंद गिनती के दिन हैं, लेकिन अब इस आयत में उसको मुतअय्यन कर दिया है कि कितने दिनों के रोजे रखने हैं. तो वो फरमाया कि रमज़ान मुबारक का महीना है जिसमें आपने रोजे रखने हैं और रमज़ान मुबारक के रोजे रखना तुम्हारे लिए फर्ज है. शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, वो रमज़ान का महीना है जिसमें आपने रोजे रखने हैं. वो रमज़ान का महीना जिसमें अल्लाह ने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया. हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, जो लोगों के लिए हिदायत है और रोशन दलाइल हैं. मिनल हुदा वल फुरक़ान, और ये हिदायत है हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने के लिए. ये कुरान मजीद लोगों की हिदायत का ज़रिया भी है, अब हमेशा के लिए ये रहनुमा भी है, और हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली यही किताब है कुरान मजीद. फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फल्यसुमहु, तुम में से जो कोई इस महीने में घर में मौजूद हो उसे चाहिए कि वो इस महीने में रोजे रखे. यानी जो कोई अपने वतन में, अपने घर में, अपने इलाके में मुकीम है उसे चाहिए कि रोजे रखे रमज़ान मुबारक के. रोजे छोड़ना बगैर उज़्र के इसके लिए जायज़ नहीं. वमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, और फरमाया कि जो कोई, पिछली आयत में भी हमने पढ़ा, मरीज है या मुसाफिर है उसी को बयान किया जा रहा है, लेकिन उसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि वो दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी करेगा, दूसरे दिनों में वो रोजे रखेगा, उसकी कज़ा करेगा. किसी सूरत में भी उसको रोजे छोड़ने की इजाजत नहीं है. बाद में अल्लाह जल्ल जलालुहु तुम्हें ये सहूलतें इसलिए अता फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहते हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए भलाई चाहते हैं, और अल्लाह ये चाहते हैं कि तुम किसी मुश्किल में ना पड़ो, तुम किसी ऐसी आजमाइश में ना पड़ो कि तुम्हारे लिए फिर मसाइल पैदा हों. तो अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें इन दिनों में यानी मुसाफिर और मरज़ की हालत में रोज़ा छोड़ने और बाद में रखने की इजाज़त दी. युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है. वला युरीदु बिकुमुल उस्र, वो तुम्हारे साथ तंगी यानी सख्ती नहीं चाहता. वलितुकमिलुल इद्दा, और ताकि तुम गिनती पूरी कर लो दूसरे दिनों में. वलितुकब्बिरुल्लाह, और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो. अला मा हदाकुम, इस बात पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी है, तुम्हें रमज़ान जैसी नेमत अता की है, तुम्हें रमज़ान जैसी अजीम नेमत तुम्हें अता की है. इस पर तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो. वलअल्लकुम तशकुरून, और तुम्हें चाहिए कि तुम अपने परवरदिगार का शुक्र भी अदा करते रहो. तो ये बेटा 2 आयतें थी जो हमने आज के इस सबक में पढ़ी हैं. आपने अच्छे तरीके से इस सबक को पढ़ना है और याद करना है. उसके बाद नमाज है, दरूद शरीफ है, हमने आपको कल पढ़ा दिया था, उसका तर्जमा भी है, तर्जमा भी आपने याद करना है. दरूद शरीफ और दरूद शरीफ का साथ में तर्जमा आपके पास नोट्स में मौजूद हैं. अच्छे तरीके से बेटा जी आपने इसको याद करना है. अल्लाह पाक हमारा और आपका हामी नासिर हो. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Now we are studying about English for grade 6. Today our diary is not present continuous tense. आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है? प्रेजेंट मतलब हाल, कंटिन्यूअस मतलब जारी. इसके पहचान उर्दू में जुमले के आखिर में आता है रहा है, रही है और रहे हैं. इसको बनाने का तरीका मुख्तलिफ है. जैसे कि हमें मिसाल के तौर पर किसी भी काम के लिए हेल्प की ज़रूरत होती है, इसी तरह इनके जुमलों को बनाने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद हैं, लाइक एम, लाइक आर एंड लाइक इज. इसी तरह इनको हम फ्रेंड्स भी कह सकते हैं. ये मुख्तलिफ लोगों के फ्रेंड्स हैं. जैसे कि आई का फ्रेंड सिर्फ एम है, इसके अलावा आई की दोस्ती किसी और से
फिर नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पर्सन, ही, शी, इट और सिंगुलर। ये जितने भी हमारे पास आएंगे सिंगल नेम के साथ, सबके साथ इज तो आएगा क्योंकि वो उनका बेस्ट फ्रेंड है। जब हम आर लगाएंगे तो वहाँ उनकी लड़ाई हो जाएगी और वो वहाँ पे सूट नहीं करेगा। अब इनको मेकिंग मेथड सेंटेंस का देखें, इनमें हमारे पास फर्दर काइंड्स होती हैं लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सवालिया, नेगेटिव इंटरोगेटिव मंफी सवालिया। ये चार हमारे पास इसकी मुख्तलिफ काइंड्स हैं। इसको बनाने का तरीका है कि जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पर उर्दू में एक सेंटेंस आ रहा है, हमने उसकी एंडिंग पॉइंट पे नोट करना है, चपरासी घंटी बजा रहा है। फिर हमें देखना है कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा क्या था, फिक्रे के आखिर में आ क्या रहा है, रही है, रहे हैं। इसी तरह हम सेंटेंस के लास्ट में नोट करेंगे क्या हमने जो बताया गया था हमारी वो डिमांड पूरी हो रही है या कि नहीं। हमारी यहाँ पर डिमांड पूरी हो रही है क्योंकि इसलिए फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने मेंशन करना है सबसे पहले स्ट्रक्चर। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस हमारे पास इज आ गया, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आ गई, प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। इसको जिस तरह हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, सेम उसी मेथड से आप लोगों ने इस फार्मूले स्ट्रक्चर को लर्न करना है देन, और फिर पुट करते जाना है अपने इंग्लिश के वर्ड्स इस फार्मूले के लिहाज से। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले डिमांड की गई है सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट राइट करो। सब्जेक्ट होता क्या है, फाइल, काम करने वाला। काम करने वाला कोई भी शख्स हो सकता है। वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे चपरासी है, यहाँ पे हमारी मदर वादा भी हो सकती है, यहाँ पे किसी लड़के का नेम, लड़की का नेम भी हो सकता है, यहाँ कोई बेजान चीज भी हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास चूंकि चपरासी मेंशन है, इंग्लिश में चपरासी को द पियन कहते हैं। पियन स्टार्टिंग में हमने द पियन लगाया, ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमें नोट करना है हेल्पिंग वर्ब, इसका फ्रेंड कौन था, वो लाजमी इसके साथ आएगा, द पियन इज। फिर फर्स्ट फॉर्म बजाना की इंग्लिश में रिंग होती है, उसमें हमें जब फर्स्ट फॉर्म के रहा नहीं रहे कहीं भी आएगा वहाँ हम इंग फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। रिंगिंग द, घंटी बजाना, द बेल। उर्दू में जब हमारे पास कोई भी सेंटेंस आता है चपरासी घंटी बजा रहा है यानी कि फाइल, मफूल और फेल। उर्दू में जब हमारे पास फेल आखिर में आता है, इंग्लिश में हमारे पास फेल जिसको वर्ब कहा जाता है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी मेन वर्ब के तौर पर यूज किया जाता है। और ऑब्जेक्ट जिसको हम मफूल कहते हैं वो हमारे पास उर्दू में दरमियान में आएगा, जबकि इंग्लिश बनाते हुए हमारे पास वो लास्ट में आएगा। अब हम जब इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें आएगा चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। कोई इशू नहीं, सिर्फ आपके पास अफर्मेटिव यानी कि मस्बत जुमला पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर हो और उसका एक ही सेंटेंस हो, देन बाकी सेंटेंस मेकिंग यू कैन इजीली मेक द ईच एंड एवरी सेंटेंस लाइक द पियन, वहीं ऊपर से उठाएं, इज भी आएगा। फिर नेगेटिव मतलब मनफी जुमला जिसमें हमने किसी बात से इनकार करना है, द पियन इज नॉट रिंगिंग द बेल सेम लाइक दिस प्रीवियस पॉइंट। फिर हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, सवालिया जुमला, क्या चपरासी घंटी बजा रहा है, और लास्ट में यू मस्ट बी क्वेश्चन मार्क हियर। इसमें हमारे पास जो आपने उसका फ्रेंड था, हेल्पिंग वर्ब था, उसको आपने स्टार्ट में लेके आना है। बाकी आप लोगों ने पूरे का पूरा सेंटेंस सेम एज इट क्राइटेरिया के मुताबिक वही फॉलो ऑन कर देना है। यानी कि इस हमने उठाया और स्टार्ट में राइट कर दिया और बाकी सेंटेंस सेम इज एट राइट कर दिया और क्वेश्चन मार्क मेंशन इज द पियन रिंगिंग द बेल। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटरोगेटिव के मनफी भी है और सवालिया भी कि जिसमें शक व शुबा होते हैं। देखें क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, देखें इज द पियन, उसी क्वेश्चन को ऐड करें इंटरोगेटिव को, इज द पियन रिंगिंग द बेल, और जहां मनफी आया वहां पे आप लोगों ने वहां पे नॉट मेंशन कर देना है। ऐसे ही इसी से रेलेवेंट सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए।
सेंटेंस। हम सच बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग द ट्रुथ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। देखें यहाँ पे मैं का वर्ड आया, जब मैं का वर्ड आया तो आई लगा, आई का फ्रेंड सिर्फ हमारे पास एम था। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एम की बजाय इज कर दूं, आई इज वेटिंग फॉर यू, इट इज नॉट करेक्ट आंसर, इट इज नॉट करेक्ट सेंटेंस भी है। इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले लर्न दीज लाइंस, लर्न एंडिंग पॉइंट एंड लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फिर है हमारे पास, हम इसी को कन्वर्ट किया, हम सच नहीं बोल रहे हैं, वी आर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू। फिर है इसी को इंटरोगेटिव में चेंज किया, क्या हम सच बोल रहे हैं, आर वी स्पीकिंग द ट्रुथ। हमने यहीं से उठाया और बाहर मूव किया और बाकी हमारा सेंटेंस सेम एज इट। क्या मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, एम आई वेटिंग फॉर यू, क्वेश्चन मार्क मस्ट नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या इसमें फिर वही शब्द, क्या हम सच नहीं बोल रहे हैं, आर वी नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट वेटिंग फॉर यू, क्वेश्चन मार्क। नाउ आफ्टर learning of structure and after learning the each and every point, then you will make the sentence must be on your rough notebooks. Till then, okay, fi amanillah. Assalamu alaikum. Dear student, class 6 subject math exercise 8.4 question number 1 part 7 से 10। क्योंकि इसके जो पिछले पार्ट थे वो हमने कल कर लिए थे, तो रिमेनिंग पार्ट आज हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा था सिंपलीफाई। सिंपलीफाई में ये होता है कि आपने देखना है कि उसके साथ साइन कौन से है, प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड कर रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है x का क्यूब, पहले वैल्यूज टैली कर लें बुक से, x का क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस x y का स्क्वायर प्लस y का क्यूब। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 1। जैसे आपको कल भी बताया था कि अगर आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए दो बातों का ख्याल करना है कि आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान क्या चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी होती है। कोएफिशिएंट हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। जो वेरिएबल है वहां से ये देखना होता है कि वेरिएबल उनके सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो, तो उनके कोएफिशिएंट को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रोडक्ट ग्राफ करते हैं। इस वाली वैल्यूज को हम वैसे राइट करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन, ये क्या करता है, ये नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यूज ब्रैकेट में होती है उसके सारे साइन चेंज कर देते हैं। ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन ऑल द साइन ऑफ दिस ब्रैकेट विल बी चेंज, कि इस नेगेटिव साइन की वजह से इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। मतलब अगर कोई साइन पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा और अगर कोई नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए इसकी वजह से ये प्लस की वैल्यू थी माइनस में हो गई, ये प्लस की थी माइनस की हो गई, इसी तरह ये भी प्लस का मान था माइनस का मान हो गया। अब हमें देखना है कि जिनके जो सेम वेरिएबल है और उनकी पावर भी सेम है उनको हमने ऐड करना है। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है वो है x का क्यूब, इसके अंदर देखें और की x की क्यूब वाली वैल्यूज है नहीं है, तो इसलिए हम इसको वैसे राइट करेंगे। इसके बाद बड़ी वैल्यूज कौन सी है हमारे पास इस पूरी लाइन के अंदर, वो है y का क्यूब, तो उसको हमने राइट किया, ये प्लस का y का क्यूब। उसके बाद ये देखें x का स्क्वायर y ये प्लस का है और x का स्क्वायर y ये माइनस का है। तो आपको पता है जब सेम वैल्यूज मौजूद हो, एक प्लस की और एक माइनस की, तो आपस में वो कट हो जाती है। इसी तरह हमारे पास ये है x y का स्क्वायर और ये माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, तो ये आपस में कट जाएंगे। x का क्यूब राइट किया था प्लस y का क्यूब और लास्ट में हमारे पास वैल्यूज बची है वो क्या है माइनस का वैल्यू, तो हमने उसको राइट कर दिए। इसी तरह से इसके रिमेनिंग पार्ट भी ऐसे ही होंगे। उसके बाद हमारे पास 7 के बाद इसका पार्ट नंबर 8 है। इसके अंदर जो वैल्यू थी इसको भी आप टैली कर लें बुक से, 3x² प्लस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर। इसी तरह दरमियान में माइनस का साइन है
-3xy का स्क्वायर प्लस xy का स्क्वायर। सबसे पहले इसकी ब्रैकेट ऑफ करनी है। ये तो वैसे हम राइट करेंगे क्योंकि इससे पहले कोई वैल्यूज है नहीं, अगर कोई वैल्यू होती तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। आपको पता है जब भी नेगेटिव साइन आता है तो अंदर जो ब्रैकेट है इससे आगे जो वैल्यूज है उन सब वैल्यूज के साइन चेंज करने होते हैं। तो ड्यू टू दिस साइन ऑल द साइन ऑफ दिस ब्रैकेट विल बी चेंज। तो इस साइन की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस में चेंज हो गया, और ये प्लस का था तो माइनस में चेंज हो गया। अब पहला स्टेप हमारा हो गया। सेकंड स्टेप में हमें ये देखना होता है कि जो सेम वैल्यूज है उनके कोएफिशिएंट को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर साइन। तो ये हमारे पास देखें 3x², 3 इसका कोएफिशिएंट है और हमारे पास x²। इसी तरह और वैल्यू देखते हैं इसके अंदर कोई और हमारे पास वैल्यूज है जिसके ऊपर x² हो। तो ये देखें ये हमारे पास जो वैल्यूज है इसके ऊपर भी स्क्वायर मौजूद है। तो ये हमारे पास 3x² -2x², तो आंसर हमारे पास आएगा x²। वैसे 1x² आएगा, लेकिन आपको पता है कोएफिशिएंट जब 1 होता है तो 1 कोएफिशिएंट हम राइट नहीं करते, तो इसलिए ये पढ़ा जाएगा 1x², लेकिन 1 कोएफिशिएंट पे हम राइट नहीं करते होते। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज थी प्लस का 6xy, प्लस का 6xy, क्योंकि इस तरह की कोई और वैल्यूज थी नहीं तो इसलिए हमने उसको सेम राइट कर दिया जैसे लिखा हुआ था। अगर इसके साथ कोई और वैल्यूज होती तो उसको हम ऐसे इसके साथ प्लस या माइनस कर सकते थे। ये वाली वैल्यू राइट कर ली। उसके बाद हमारे पास है 9y², तो y² वाली और वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे नहीं है तो उसको भी हमने वैसे राइट कर लिया है। इसी तरह हमारे पास ये वाली वैल्यूज हो गई, इसको हमने राइट किया। ये हमारे पास क्या था 9y², इसको भी हमने राइट कर दिया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो ये हमारे पास 3x y का स्क्वायर माइनस x y का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है 3 और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है -1। तो 3 को 1 से माइनस करें क्योंकि प्लस का 3 या माइनस का मान है तो क्या बचेगा प्लस का 2 और साथ में x y स्क्वायर। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपकी प्रैक्टिस है। अपनी मैथ की नोटबुक पे प्रैक्टिस करेंगे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Assalamu alaikum, dear student. How are you all? I am your history and geography teacher for grade 6. जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफिया बाब नंबर 8 इंसानी बस्तियाँ। हमारा आज का क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, मशहूर दुनिया की कदीम तरीन बस्तियों के नाम तहरीर करें, शहरी बस्तियों के नाम। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बस्ती किसे कहते हैं। जैसे कि हमने कल पहले पढ़ा था कि जब एक जगह पर बहुत सी घर बन जाए तो वो जगह जो है वो बस्ती कहलाती है। तो फिर ऐसे ही बाद में हमने डिस्कस किया था बस्तियों के एग्जाम। बस्तियों के एग्जाम में हमने शहरी और देहाती 2 तरह की बस्तियाँ डिस्कस की थी कि बस्तियाँ भी आगे 2 तरह की होती हैं, शहरी बस्तियाँ और देहाती बस्तियाँ। फिर हमने आगे देहाती बस्तियों की भी आगे से हमने फर्दर उसकी अक़साम को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास था लंगोटी किस्म की, लंगोटी तरह की, गैर मनसूबाबंदी के तहत बनाई जाने वाली बस्तियाँ, मनसूबाबंदी के तहत बनाई जाने वाली बस्तियाँ, और इसके साथ साथ हमारे पास 3-4 और तरह की भी तक़सीम को हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज के सवाल में हमसे पूछा गया है कि दुनिया की कदीम तरीन बस्तियों का नाम तहरीर करें। पहले तो हमारा हम ये समझेंगे ना, जान पाएंगे कि कदीम बस्तियाँ क्यों कहा गया। कदीम बस्तियाँ इसलिए कहा गया कि वो बस्तियाँ जिसका अब दुनिया में वजूद नहीं रहा, वजूद से मुराद क्या, वहाँ पे लोग नहीं रहते। वो इस वजह से कि जब लोगों ने अपने ज़राअत के शोबे में बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर ली, अब उनका ज़राअत का शोबा बहुत ज़्यादा फूलने लगा। ज़राअत से मुराद खेती बाड़ी का शोबा। अब उन्होंने जब उसमें बहुत महारत हासिल कर ली और अपने ज़रूरियात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो आगे अपनी तजारती सरगर्मियों का उन्होंने आगाज़ किया, जिसकी वजह से उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिली का काम शुरू कर दिया। यानी उन्होंने अपने घरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया। फिर जब वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुए तो उनका मेयार ज़िंदगी भी बुलंद होने लगा और साथ साथ उनका रहन सहन में भी तब्दीली आना शुरू हो गई। जब वो तमाम के तमाम लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर गए, जिसकी वजह से पीछे बाकी रह जाने वाली बस्तियाँ जो
जो है वो ख़त्म हो गया और फिर वो दुनिया की कदीम तरीन बस्तियों में शुमार होने लगी। इसके जब उन लोगों ने बाकायदा तौर पर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्टिंग का काम शुरू किया, उनके रहन सहन में, उनके उठने बैठने में और उनके ज़राअत के शोबे में और हर तरह के शोबे में बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ शुरू होना शुरू हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं कि दुनिया की कदीम तरीन बस्तियाँ कौन सी हैं। Now look at on your book on page number 101, as you can see on your book हमारे पास है दुनिया की कदीम तरीन बस्तियाँ, जिसमें है इराक। सबसे पहले है इराक। इराक में शहरी बस्तियाँ जो हैं बस लगाश, उड़, बाबुल, यूरोप। इराक में शहरी बस्तियाँ हैं लगाश, उड़, बाबल, यूरोप। नेक्स्ट हमारे पास है मिस्र। मिस्र हमारे पास इलाका, उसकी शहरी बस्तियाँ Memphis, Thebes। I'm again repeated, Memphis, Thebes। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कदीम बस्तियाँ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। फिर हमारे पास है चीन। चीन की शहरी बस्तियाँ कदीम चिंगचान एंड यन। ये हमारे पास कदीम तरीन शहरी बस्तियाँ हैं जो बहुत सारा हमारे पास उनकी अगर हम उन पर रिसर्च करें तो पता चलता है कि वहाँ पर ज़िंदगी का वजूद था, लोग वहाँ पर रहते थे, उनका क्या रहन सहन था। उन पर रिसर्च करने के बाद हमें हर चीज़ वहाँ पर उनके आसार नज़र आते हैं, उनके खाने पीने के चीज़ें अशिया मिलती हैं, मतलब उन अशिया का वजूद नज़र आता है वहाँ पर। जो चीज़ें वहाँ पर ज़राअत के लिए इस्तेमाल की जाती थी वो भी नज़र आती हैं हमें, और उन लोगों के जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था, जो वहाँ पर रिहाइश और घर बनाने के तरीके थे, वो सारे हमें पता चलते हैं। तो ये हमारे पास दुनिया की कदीम तरीन बस्तियों में शुमार की जाने वाली बस्तियाँ हैं। तो डेयर तलबा, ये आपका आज का लेसन था जिसको आपने बाकायदगी से लर्न करना है ताकि हम रोज़ की डायरी को रोज़ के रोज़ याद कर सकें। ये हमारे काम। Assalamu alaikum dear students, I hope you are fine. I am Abdul Majid, science teacher. We are studying science of 6th class. Previously हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमारे पास था कि सिंगल पुली किस तरह मूव करती है, किस तरह वर्क करती है। आई होप कि आप लोगों ने उसको प्रिपेयर किया होगा, याद किया होगा, उसको टेस्ट में रिटर्न किया होगा और उसको अच्छी तरह मैनेज किया होगा। तो आज जो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उसका सेकंड पार्ट है, वो है हमारे पास मूवेबल पुली। मूवेबल पुली में आप देखेंगे इस डायग्राम को, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे दो पुलिस को इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट पुली ये है जो बिल्कुल अटैच है अपने स्पोर्ट के साथ। जो दूसरी पुली है जो हमारे काम करती है, ये क्या वर्क करती है और ये मूव भी करती है, जो किसी भी लोड को क्या करेगी, मूव करवाएगी वन डायरेक्शन से अनदर डायरेक्शन में। ये पुली जो है वो मूवेबल है। अगर हम इस रोप को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करें, स्टैंड करें, तो ये जो लोड है ये नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। इस तरह ये वर्क करती है। इसका मकसद होता है कि हम किसी लोड को, अगर हमारे पास इस तरह की डायरेक्शन है कि हम जो है उस लोड को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते हैं। अगर हम नीचे खड़े हैं, दूसरी चीज उस तरफ साइड पे मौजूद है, हम फर्स्ट जो फिक्स पुली है जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था वो हम यूज करते हैं, जो आपने क्रेन में देखी है, जो आपने वेल के अंदर देखते हैं, और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसकी। इस तरह यहाँ मूवेबल पुली में हम अगर ऊपर खड़े हैं और बॉडी को भी हमने नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना है, तो हम जो है इस मूवेबल पुली का यूज करते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं, नोट्स ओपन करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट वो लर्न करना है आपने। दिस काइंड ऑफ पुली हैज अ हुक। इसमें एक हुक लगी होती है टू टाई, बांधने के लिए लोड को। इस तरह हमारे पास ये जो लोड इस पुली के साथ टाई हुआ है। आगे है मूवेबल पुली, कौन सी, ये वाली सेकंड वन, नीचे वाली। मूवेबल पुली मूव्स टुगेदर विद लोड के साथ साथ मूव करती है। मैंने बताया था जिस तरह हम रोप को ऊपर खींचेंगे, वो रोप जो है इस पुली को भी ऊपर खींचेगी और साथ लोड को भी ऊपर लेके जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास दिस काइंड द रोप, in this kind the rope is attached to some support with pulley moves
ये वाली जो रोप है इस बोर्ड के साथ क्या की है, अटैच की गई है। उसके बाद है द मूवेबल पुली डज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम फोर्स ऊपर मूव करवा रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, इसी तरह पुली की मूवमेंट भी अपवर्ड है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसी तरह लोड की भी डायरेक्शन वो भी अपवर्ड है। द अप्लाइड फोर्स, जो हम फोर्स लगाएंगे, एंड द लोड मूव इन द सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन इसमें डायरेक्शन सेम होती है। आई होप कि आप इसको प्रिपेयर करेंगे, इसका सेल्फ टेस्ट बनाएंगे, खुद टेस्ट लेंगे। वालिदैन से गुजारिश है तो वो इसका बच्चों से टेस्ट लें और रिटन टेस्ट जो है वो आपके लिए बहुत ही काबिल हमसाये के हुकूक हमारे पास नंबर 1 पर है। इस्लाम ने ताकीद की है कि हमसायों की इज्जत और आबरू की हिफाजत की जाए, यानी उनकी इज्जत को, उनकी रिस्पेक्ट को अपनी इज्जत समझा जाए। आबरू से मुराद भी इज्जत ही है। उनके बुजुर्गों को अपने बुजुर्ग समझें, उनके बच्चों को अपने बच्चे समझें और उनको ऐसा ही डील करें जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर्स को डील करते हैं। नंबर 2 है पड़ोसी की तरफ से मिलने वाली तकलीफ पर सब्र किया जाए, यानी अगर उनके यहाँ कोई खुशी का मौका है और फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लाउडली म्यूज़िक ऑन किया हुआ है जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, ज़ाहिर है घर के मामला है, आराम है, इसके मौका पर ऐसा नहीं कि उनके साथ बहस मुबाहिसा किया जाए, खुशी को ख़राब करें या नेक्स्ट टाइम उनके साथ खुशी और गम के मौका पर बाइकाट कर दें, बल्कि बेहतर तरीके से उन्हें इस बात की इत्तला दें, उनकी किसी बड़े से गुफ्तगू करें कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, थोड़ा म्यूज़िक कम करें और खुशी और गम के मौका पर उनके साथ उसी तरह से मेल मुलाकात रखें जैसा आप इस मौका से पहले रखते थे। नंबर 3 है हमारे पास खुशी के साथ पड़ोसी के साथ हमेशा हमेशा हुस्न सलूक और खुश अखलाकी से पेश आना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में पड़ोसी के हुकूक को गिनवाते हुए फरमाया है कि अगर उनके घर कोई खुशी का मौका है उन्हें मुबारकबाद दें, अगर कोई वफात है तो उनके जनाजे में शिरकत करें, यहाँ तक कि अपने घर अगर फल लेकर आए हैं तो उन्हें बतौर तोहफा भेजें, अगर वहाँ कोई बीमार है तो उसकी अयादत के लिए जाएं, ये उनके हुकूक हैं। अगर उन्हें माली इमदाद की ज़रूरत है तो उनकी मदद करें। इन हुकूक को अदा ना करने वाला इंसान अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदार है। नंबर 4 पड़ोसी को अपने कौल और फेल से किसी किस्म की अज़ियत ना पहुँचाई जाए। कौल से मुराद आपकी गुफ्तगू है, कभी आप इस तरह से उनसे गुफ्तगू ना फरमाएं कि गैर मुनासिब हो, बड़े छोटे का भी ख्याल रखें और गुफ्तगू के अल्फाज भी मुनासिब होने चाहिए। फेल से मुराद आपकी ऐसी कोई हरकत है जिससे वो इरिटेट हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, इस तरह से कोई भी अमल उनके साथ ना किया जाए। हमारे पास सूरह निसा है आयत नंबर 36, इसमें अल्लाह ताला ने जिस तरह से माँ बाप के, बहन भाइयों के हुकूक बताए हैं उसी तरह से पड़ोसियों के हुकूक बताए हैं। तर्जुमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और माँ बाप और क़राबत वालों और यतीमों और मोहताजों और रिश्तेदारों और हमसायों और अजनबी हमसायों। एक है रिश्तेदार हमसाए, जैसे आपकी कोई खाला है, कोई चची है जो आपके साथ एक ही आप लोग घर में रह रहे हैं, डबल पोर्शन में, या वो अजनबी हमसाए हैं और इसी तरह से आपके साथ है, उनका भी आपका हक है। और साथ बैठने वालों, जैसे आप फेलोज हैं, क्लास में साथ बैठते हैं, और मुसाफिर यानी जो थोड़ी देर के लिए किसी सफ़र में आपका साथी बना है, और जो तुम्हारे कब्जे में हो, यानी गुलाम, मुलाजमों में इसको शामिल किया जा सकता है। इन सब के साथ एहसान करो। एहसान का मतलब ये है कि उनके हुकूक से बढ़कर उनको दिया जाए। एक तो है इंसान का हक जिसकी लिमिट्स कुरान पाक ने बताई हैं, अहादीस में है, उनको पूरा करना है। इसके अलावा भी उनके हक से बढ़कर उनको देना ये एहसान है, इसका अल्लाह ताला ने
कर खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूख की हालत में रात गुजारे। सेर होने से मुराद है पेट भरकर। पड़ोसियों के इस कदर हकूक की वजह यह है कि पड़ोसी गुर्बत की वजह से हमारे दुख दर्द और मुसीबत में सबसे पहले काम आते हैं, क्योंकि रिलेटिव्स तो दूर के रहने वाले लोग अगर हैं तो वो तो बाद में पहुँचेंगे। घर में कोई इमरजेंसी सूरत हाल है या कोई खुशी का मौका है तो सबसे पहले पड़ोसी पहुँचते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके इतने ज़्यादा हकूक बनाए हैं और इस पर जोर दिया है कि वो खुशी और गम के मौका पर हमारा साथ देने के लिए सबसे पहले पहुँचते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने कहानी पढ़ी थी इत्तेफाक में बरकत है। आज हमारे पास न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि सबक नंबर 18 खेल। सबक की पढ़ाई करने से पहले आपको बताता चलूँ कि खेल जो है एक आदमी के लिए कितना ज़रूरी है, एक अच्छा खिलाड़ी कैसे वो बन सकता है, एक अच्छे दिमाग के लिए खेल कितना ज़रूरी होता है, ये हम जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई में करेंगे। पढ़ाई करते वक्त आपको जो दरपेश मुश्किलात आएंगी वो है अल्फाज मायनी प्लस फरहम। इस वजह से मैंने यहाँ पे वाइट बोर्ड के ऊपर ये अल्फाज मायनी मैंने मैनेज कर दिए ताकि आपको रीडिंग करते हुए प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास अल्फाज मायनी है। नंबर 1 अलापना, ताल लगाना, शीरीं, मीठे, वसीला, जरिए, मुज़य्यन, रास्ता, मामूल, दस्तूर, चाको चौबंद, चुस्त, मरगूब, पसंदीदा। तो ये कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी थे जो मैंने यहाँ पे मैनेज किए ताकि आपको मज़ीद आसानी से इसकी समझ आ जाए। इसके अलावा बेटा हमारे पास सरगर्मी है, सरगर्मी नंबर 2 जो कि आपका ये एच वर्क भी जा रहा है। सरगर्मी नंबर 2 जो कि एच वर्क है, उसमें क्या है कि सरगर्मी नंबर 2 में है आप जो खेल खेलते हैं उनके नाम लिखें। इट्स मी एक बच्चा है वो 2 से 3 खेल खेलता है, जैसे हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो वो अपने खेलों के नाम यहाँ पे मैनेज कर सकता है। कोई बच्चा है जिसको सिर्फ क्रिकेट का शौक है वो यहाँ पे अपना क्रिकेट मैनेज कर सकता है। हर बच्चे के अपने मशगले होते हैं, हर बच्चे के अपना खेल होते हैं। तो जो आपको समझ आती है कि मैं मुझे इस खेल में महारत हासिल है तो वो खेल आपके यहाँ पे तहरीर करने हैं। एक दफ़ा फिर मैं बताता चलूँ, हमारा जो सबक नंबर 18 खेल, खेलों के ऊपर सारा बेस है, इसकी पढ़ाई है, इसके फिर अल्फाज में प्लस फरहम, साथ में सरगर्मी नंबर 2 जो कि आपका एच वर्क भी जा रहा है, ये आप खुद करेंगे। आप जो खेल खेलते हैं उनके नाम लिखने हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 5, जितने आप खेल खेलते हैं वो आपने अपने एच वर्क में मैनेज करने हैं। तो एच वर्क करने से पहले हर लेक्चर में मैं यही बात करता हूँ कि आपकी लिखाई प्लस इमला ये आपके दुरुस्त होने चाहिए, क्योंकि आप बाज़ औक़ात रीडिंग तो अच्छी कर लेते हो, पढ़ने में तो आप बहुत अच्छे होते हो, फिर आपके नंबर जो कट होते हैं वो सिर्फ आपकी राइटिंग की वजह से होते हैं, आपके इमला की वजह से होते हैं। तो घर पर इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करें, इसकी बार बार मशक करें ताकि आपकी इमला प्लस राइटिंग बहुत अच्छे हो जाए। वस्सलाम।